Good morning, dear students. Today we shall study English prose. Lesson first, A Letter to God, which had been written by G.L. Funes. There is a character whose name is Lencho. He works hard from morning till late evening. It was a good crop this year. What it needed rain very much. His whole crop was destroyed by hailstones. He wrote a letter to God. He demanded 100 pesos to show his field again. What he received only 70 pesos. Now we shall study the lesson word to word with Hindi explanation and see what happens further. Paragraph number 1. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river of the field of Ripcorn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, घर, the only one, केवल एक, in the entire valley. Entire means संपूर्ण, valley means घाटी में. Sat means स्थित था, on the crest माने चोटी पर, of a low hill, नीचे वाली पहाड़ी. संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था जो नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर चोटी पर स्थापित था. From this height, one could see the river and the field of Ripcorn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, height means ऊंचाई. One could see, इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी को and the field of Ripcorn, पके हुए अनाज के खेतों को, dotted with the flowers, जो फूलों के रूप में छितराए हुए थे, that always promised a good harvest, जिससे ये लगता था कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing the earth needed, भूमि के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, was a downpour. Downpour means बौछार, बरसात. Or at least a shower, या फिर shower means बौछार. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Throughout the morning, संपूर्ण सुबह. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत निकटता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने इसके सिवाय कुछ नहीं किया, ओट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूरब के बादलों को देखने के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं किया. पैराग्राफ नंबर 2. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. The woman who was preparing supper replied, जो महिला रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, Yes, God willing, हाँ ईश्वर की इच्छा है. The older boys went working in the field. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. The older boys, जो छोटे लड़के, बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे घर के निकट खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको रात्रि भोज पर नहीं बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था, दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों ने गिरना प्रारंभ कर दिया. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Approaching means पहुंचना. In the northeast, उत्तर पूर्व से बादलों के बहुत बड़े बड़े समूह पहुंचते हुए देखे जा सकते थे. The air was fresh and sweet. हवा मधुर थी और मीठी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो व्यक्ति किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया Then to have the pleasure of feeling the rain on his body, बल्कि वर्षा की बूंदों को शरीर पर गिरते हुए महसूस करने के लिए वो घर से बाहर गया. And when he returned, he exclaimed, जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. These are not raindrops. Raindrops means वर्षा की बूंदें. Falling means गिरती हुई. From means से. Sky means बादल. ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. बड़ी बूंद का मूल्य 10 सेंट के बराबर है, जबकि छोटी बूंद का मूल्य
5 सेंट के बराबर है। पैराग्राफ नंबर 3। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद इस सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इस संतुष्टपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड, उसका ध्यान गया, द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, अपने पके हुए अनाज के फूलों के खेत की ओर, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसके ऊपर वर्षा की एक परत सी जम गई थी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. What suddenly? Suddenly means अचानक, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली हवा चलने लगी और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly do resemble new silver coins. ये भी नए सिक्कों के समान थे। The boys, लड़के, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulse. The boys, लड़के, exposing means बचते हुए, लड़के स्वयं वर्षा से बचते हुए, इन जमे हुए, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पल्स माने मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It is really getting bad now, exclaimed the man. उस व्यक्ति ने कहा, वास्तव में ये बहुत गलत हो रहा है। I hope, मैं आशा करता हूँ, it passes quickly, ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। It did not pass quickly, ये शीघ्र नहीं गुजरा। For an hour, 1 घंटे तक, the hail rained on the house. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक ओलों की बौछार होती रही बगीचे में, पहाड़ी की ओर, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। खेत ऐसा सफ़ेद मालूम पड़ता था जैसे कि इसे साल्ट मीन्स नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न मीन्स फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल मीन्स आत्मा, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, ही स्टूड, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के मध्य में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डी। राइटर कहता है कि टिड्डियों का दल यदि खेत में प्रवेश कर जाता, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि टिड्डियों का दल खेत में प्रवेश कर जाता तो बहुत कुछ छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल मीन्स हेल स्टोन्स, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें फसल, अनाज प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ये रात्रि एक दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा कार्य सब बेकार। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखों रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 4। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts of all, उन सभी लोगों के दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस एकाकी घर में रहते थे, in the middle of the valley, घाटी के मध्य में उस एकाकी घर में रहते थे, there was a single hope, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड,
डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये पूर्ण हानि मालूम पड़ती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यह वह है जो वे कहते हैं, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, संपूर्ण रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। हुज आईज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि मनुष्य की अंतरात्मा में क्या है वह ये भी जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के लिए, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वह स्वयं शहर ले जाएगा और मेल पोस्ट ऑफिस में, पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। आई नीड 100 पीसोज, मेरे लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपने खेत को दोबारा से बो सकूं, एंड टू लिव, और रह सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि नई फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने मेरी पूरी फसल चौपट कर दी है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर उसने ईश्वर को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र इसके अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, वो भी परेशान था। वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में उसने एक टिकट इस पर लगाया और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। पैराग्राफ नंबर 5. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और जो पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था, went to his boss laughing heartily. बॉस मीन्स स्वामी, लाफिंग मीन्स हंसते हुए, हर्टिली मीन्स जोर से, वह जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसके लिए ईश्वर वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज करियर, करियर मीन्स पेशा, पोस्टमैन के संपूर्ण पेशे में उसके लिए वह एड्रेस, पता का ज्ञान नहीं था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा था, एमिबल मीन्स सज्जन साथी था, ब्रोक आउट लाफिंग, वह हंसने लगा। वट ऑलमोस्ट
लगभग इमीडिएटली मीन्स शीघ्र ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन ए डेस्क कॉमेंटेड, और उसने टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, लेटर को, पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए ये टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को कायम रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, जिसने ईश्वर के साथ पत्राचार प्रारंभ किया है, शो, इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, फेथ मीन्स विश्वास, राइटर मीन्स लेखक के, इसलिए लेखक के ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का, वर्ड वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसके लिए सद्भावना, इंक और पेपर के अतिरिक्त एक अन्य चीज की भी आवश्यकता थी। वॉट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसने समस्या का समाधान कर लिया, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो कर्मचारी थे उनसे धन की मांग की, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वेतन का भी एक भाग दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स दानशीलता का कार्य, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके बहुत से मित्र उसके इस दानशीलता के कार्य में मदद करने के लिए तैयार थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गेदर, गेदर मीन्स होता है एकत्रित करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ द 100 pesos, अकेले उसके लिए 100 pesos को कलेक्ट करना असंभव था, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान के लिए आधे से अधिक धनराशि भेजने में सामर्थ्यवान हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as signature God. He put the money in an envelope, उसने उस धन के लिए एक लिफाफे में रखा, addressed to Lencho, और उस पर लेंचो का पता लिखा, and with them a letter containing only a single word as his signature God, और उसमें केवल एक ही शब्द लिखा, ईश्वर के हस्ताक्षर। पैराग्राफ नंबर 6, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के लिए, लेंचो केम मीन्स आया, अ बिट अर्लियर मीन्स थोड़े पहले, अगले रविवार के लिए लेंचो थोड़े पहले आ गया, जितना कि वह सामान्यतः पूछने के लिए आता था, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from the doorway of his office. It was the postman himself, ये स्वयं पोस्टमैन था, who handed the letter to him, जिसने ये पत्र उसके लिए दिया, while the postmaster, जबकि जो पोस्टमास्टर था, experiencing, अनुभव कर रहा था, the contentment of a man, कंटेंट संतुष्टि, व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, हु हैड परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक श्रेष्ठ कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह भी अपने दरवाजे के
द्वार से, अपने ऑफिस के द्वार से ये देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लेंचो ने स्लाइटेस्ट मन जरा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका आत्मविश्वास था। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह नाराज हो गया जब उसने वो धन गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वह उस चीज को मना कर सकता है जिसकी उसने प्रार्थना की है। इमीडिएटली मीन शीघ्र ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो शीघ्र ही खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद हिज मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Immediately means शीघ्र ही, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. सामूहिक तौर पर जहाँ पर लोग पत्र लिखते थे उस टेबल पर he started to write, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। with much wrinkling of his brow, अपनी भौं को सिकोड़ते हुए, wrinkling मीन्स झुर्रियाँ डालना। caused by the effort, जिससे वह प्रयास कर सके, he had to make to express his ideas, जिससे कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। when he finished, जब उसने पत्र समाप्त कर दिया, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया। which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. blow means प्रहार, fist means मुट्ठी। he went to the window, वो खिड़की पर गया। to buy a stamp, स्टैम्प खरीदने के लिए। which he licked, जिसको उसने चिपका दिया। and then affixed to the envelope with a blow of his fist, उसने अपने मुट्ठी के प्रहार से उस टिकट को पत्र पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण ये पत्र उस पत्र पेटिका में गिरा, पोस्टमास्टर स्वयं उसे खोलने के लिए गया। It said, इसमें लिखा था, God, ईश्वर, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. भगवान, जिस धन के लिए मैंने आपसे कहा था केवल मेरे पास 70 पीसोज पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे लिए शेष राशि शीघ्र भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी नितांत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हैज ए बंच ऑफ क्रॉक्स। लेंचो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठगों के दल हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स ठगों के दल। लेंचो।